صرف مرزے کی عقل کو دائرے میں لانے کے لیے میں ایک دو باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میری اس بات کا جواب نہیں دیا کسی نے، لہٰذا میری بات بڑی حقیقت پر مبنی ہے۔ مرزے کا آدھا چہرہ تو آشکارا ہو چکا ہے کہ جو مرزا بات کرتا ہے، جو صحیح حدیثوں کا اس نے ڈھونگ رچایا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں مستند بات کر رہا ہوں کہ مرزے کا کوئی بھی آدمی اس کی اکیڈمی میں جس کا تعلق واسطہ ہے، اگر کوئی مرزے کو کہہ دے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، نہ کریں، تو مرزا ان کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے بولنے کی، تم اپنی اوقات میں رہو۔ تو سامعین ذرا میری بات کو حوصلے کے ساتھ سننا کہ ایک شخص ہے مرزے کا، میں اس کا نام بھی بتا سکتا ہوں، جس کا تعلق اس کی سیکورٹی کے ساتھ ہے۔ اس نے مرزا سے کہا کہ جو آپ حدیثیں بیان کرتے ہیں ان کے اندر 30% حدیثیں جو ہیں وہ ضعیف ہوتی ہیں، جبکہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں صحیح ہے۔ یہ لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے، پاگل بنایا ہوا ہے، کیا لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو؟ اور اس کا نام قاسم عزیز ہے، جس نے مرزے سے یہ کہا تو مرزے نے اس کی وہ بے عزتی کی کہ خبردار، تمہیں اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے معاملات ہیں، میں جانوں میرا کام جانے، تم کون ہوتے ہو مجھے پوچھنے والے؟ کیوں بھائی، کیوں نہیں پوچھنے کا حق نہیں ہے کسی کو؟ ایک طرف تم کہو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑوں کا جوڑا کہاں سے بنا دیا تھا، اور دوسری طرف جب بات تمہارے گریبان میں آئے تو تم دوسروں کو خاموش کروا دو۔ مثالیں تم ایسے پیش کرتے ہو جیسے وقت کے جنید بغدادی ہو، اور کرتوت تمہارے یہ ہیں جو تمہارے گھر سے نکل رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مرزا آج تک یہ روتا پیٹتا رہا ہے کہ مولوی چندہ لیتے ہیں، چندہ لیتے ہیں۔ انسان کو بات کم از کم وہ کرنی چاہیے کہ خود تو اس کے اوپر جو ہے وہ پیرا دے۔ اس قدر جھوٹا آدمی کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ مرزے کے چاہنے والے مرزے سے پوچھیں کہ مرزے نے جو سرائے عالمگیر میں مسجد بنائی ہے، جس کو اپنی مسجد کا نام دیا ہوا ہے، دوسروں کی مسجدیں اچھی نہیں لگتی، سرائے عالمگیر میں جو مسجد بنائی ہے اس کا چندہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کی چندہ بک بنائی ہوئی ہے مرزا نے۔ دوسروں کو باتیں کرتے ہو اور خود وہی کام کرتے ہو۔ کون ہے وہ عثمان جو مرزا کے سامنے بیٹھتا ہے، ماشاءاللہ داڑھی ہے اس کی، لمبی داڑھی کے نام سے مشہور ہے وہ؟ اچھی بات ہے، میں داڑھی پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے، جیسے اماد الاسلام کو ہدایت دی ہے کہ وہ جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا وہیں واپس آ گیا، مرزا کے ساتھ 10-12 سال گزارے۔ یہ اسی کے انکشافات کی بات کر رہا ہوں میں۔ کوئی مت سمجھے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ مرزے کے وہ لوگ ہیں جو مرزا کو دیکھ دیکھ کر واپس آئے ہیں، یہ ان کے انکشافات ہیں۔ تو سامعین، مرزا منگول نے کوڈ رکھا ہوا ہے، وہ جو عثمان نامی بندہ ہے جس کے پاس چندہ بک ہے، اس کے پاس چندہ آتا ہے، اسی کے پاس سے جاتا ہے، اور جب اس نے پوچھنا ہوتا ہے جی کیا ہوا، کیا بنا، تو وہ کہتا ہے جی اتنے آئے تھے، اتنے گئے تھے، ہیں ماشاءاللہ۔ اور مدرسوں پر تم تان کرو، مدرسوں کو تم لوگوں کے سامنے ایسے بنا کے پیش کرو کہ کوئی ایک پائی بھی مدرسے کو نہ دے۔ تو مرزا منگول کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ جو مدرسوں پر تم بات کرتے ہو، چندے پر بات کرتے ہو کہ کوئی سلاب کا چندہ لے رہا ہے، کوئی مدرسے کے لیے چندہ لے رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ چندے پر پل رہے ہیں، یہ مدرسوں میں انہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ سانڈ بن گئے ہیں۔ شرم کرنی چاہیے تمہیں، یہ لفظ کہتے ہوئے بھی تمہیں اتنی عقل نہیں ہے، اتنی شرم نہیں ہے کہ آج تک جو مدرسوں کو بچایا ہے اس کے لیے علماء قربانیاں دے رہے ہیں، آج تک جو مسجدیں چل رہی ہیں اس پر علماء نے قربانیاں دی ہیں، آج تک جو مدرسوں میں ہزاروں بچے زیر تعلیم ہیں وہ علماء نے قربانیاں دی ہیں، آج جہاں سے بھی بچے آتے ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے مدرسوں سے حافظ بن کے نکلتے ہیں، قاری بن کر نکلتے ہیں، اور عالم بن کر نکلتے ہیں، مفتی بن کر نکلتے ہیں۔ اور مرزا جی تم نے کیا کام کیا ہے؟ تم بتاؤ، تم نے انگریز کے ٹاؤٹ پیدا کیے ہیں، تم نے انگریز کے چیلے پیدا کیے ہیں، تم نے انگریز کے ساتھ نسبت رکھنے والے پیدا کیے ہیں۔ تم غیرت کی گولی کھاؤ اور مدرسوں کے بارے میں سوچ بدلو۔ اگر آج تمہیں مدرسے والوں کی گاڑیاں نظر آتی ہیں تو جب یہ مدرسے شروع ہوئے تھے اس وقت جو مارے کھا رہے تھے، جیلوں میں جا رہے تھے، اور جو مدرسوں کی خاطر اپنی عزت برباد کر رہے تھے وہ بھی مولوی تھے۔ اس وقت تم کہاں سو رہے تھے؟ اس وقت تمہاری عقل غیرت کہاں تھی؟ اس وقت کہاں تھے تم؟ آج میری بلی مجھے بھی آؤں، آج تمہاری زبان کھلی ہے ان مدرسوں کے بارے میں۔
अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाओ परवेज़ मुशर्रफ की कब्र से जाकर सवाल करो, उसने मदरसों को कैसे दायरे में लाने की कोशिश की थी और मस्जिदों के जो चंदा देते हैं उनकी फहरिस्त बनाने की कोशिश की थी। आज मदरसे हैं, वो नहीं है। जिसने भी मदरसों के बारे में गलत सोचा, मस्जिदों के बारे में गलत सोचा, उलमा के बारे में गलत सोचा, वो कब्र के गड्ढे में तो चला जाता है। लेकिन मदरसे मस्जिदें जो हैं वो आज भी चल रही हैं, क़यामत तक चलती रहेंगी। और तुम्हें क्या मिलेगा ये तो तुम्हारी कब्र बताएगी कि तुम्हें क्या मिलेगा। और अगर मैं उन बुज़ुर्गों के हालात व वाक़यात और बुज़ुर्गों के जो इंकिशाफ़ात अगर मैं रिकॉर्ड करवाऊँ तो वो ख़त्म होने को नहीं आते। कितने औलिया किराम बुज़ुर्गान दीन हैं जिनका ये कौल है कि जिसने भी उलमा को बुरा कहा और उलमा की तनकीस की, उलमा की तौहीन की, उलमा की तहकीर की, तो वो कहते हैं कि हमने उनकी कब्रों को जहन्नम का गड़ा बनते देखा है। मिर्ज़ा मंगोल, अगर तुम अकल के नाखून लेते हो या ले सकते हो तो तुम अपनी कब्र से डरो, इससे तौबा करके गुलशन इस्लाम हकीकी तौर पर दाखिल हो कलमा पढ़ के, वगरना जो तुम्हारा हशर होगा इंशाल्लाह वो रब जानता है या तुम कब्र में जानोगे। इसलिए कि मदरसों पर उठने वाली उंगली जो है वो तोड़ी तो जा सकती है, उसका एतबार नहीं किया जा सकता। आज हज़ारों लाखों मदरसे दुनिया में चल रहे हैं, पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो क्या तुमसे चंदा मांगा किसी ने? जो तुम ज़ुबान खोलते हो, दराज करते हो, तुमसे किसी ने चंदा मांगा नहीं। और जो दे रहे हैं मदारस और मसाजिद में चंदा देकर उनको चला रहे हैं, तुम्हें उनकी भी तकलीफ़ है। तो सुनो, मैं तमाम बातों का एक वाक़या मुख्तसर तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। और मिर्ज़ा के जो मानने वाले हैं, अल्लाह ताला इनको अक़ल दे, फ़हम दे और अक़ल सलीम दे कि इसका पल्ला छोड़कर किसी अहले इल्म के साथ वो मिल जाए। और ये वाक़या सुन के ज़रा इसको दिल में जगह देना। तुम्हारे इस प्रोपेगेंडे से कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। मदरसे तो क्या, तुम एक मदरसा नहीं ख़त्म कर सकते। ज़रा हाथ तो लगा के दिखाओ। तुम्हें जवाद नकवी का मदरसा बड़ा पसंद है, जहाँ अबू बकर का दुश्मन पैदा होता है, जहाँ उमर का दुश्मन पलता है, जहाँ उस्मान गनी का दुश्मन पलता है, सहाबा के दुश्मन जहाँ पलते हैं, वो मदरसे तुम्हें बहुत पसंद हैं। और मदूदी को तुम रहमतुल्लाह अलैह कह के पुकारने के बहुत दावेदार हो, लेकिन जो उलमाए हक़ हैं उनकी बात नहीं तुम्हें समझ आती, इसलिए कि तुम्हारी तो निस्बत उनके साथ है। तुम अहले हक़ को क्या जानो। इसीलिए तो मैंने कहा था कि सुन तो सही, जहाँ में है तेरा अफसाना क्या, मखलूक खुदा कहती है गैबाना क्या। ये इंशाअल्लाह वक़्त आएगा कि तुम अपने घर से बाहर कदम नहीं उठा सकोगे, लोग तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगे। तो सुने, एक चौधरी साहब थे नहीं बल्कि हैं, वो मदरसे को 1 साल पूरे की गंदम देते थे कि पूरे साल का जो गंदम का खर्चा है वो गंदम मदरसे में पहुँचाते थे कि साल में जितनी गंदम लगे, जितने मन भी लगे, वो अपने गंदम मदरसे को देते थे। मिर्ज़ा मंगोल, तुम्हें होश के नाखून लेने पड़ेंगे। तुम क्या इस तरह के जो लोग हैं मुखलस, रब्बुल आलमीन ने जिनको तौफीक दी है, वो दीन के मेहमान तलबा की और जो वहाँ परदेसी उस्ताद इल्म पढ़ा रहे होते हैं, तुमने उन पर उनकी तहकीर की है। इंशाअल्लाह ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। ये तुम्हें ज़िंदगी में भी पता चलेगा और कब्र में भी पता चलेगा। तो ये जो चौधरी साहब थे, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में, उम्र में, अमल में बरकत दे। जब ये 1 साल की गंदम दे रहे थे एक मदरसे में, अब अंदाज़ा लगाएं कि साल की कितनी गंदम लगती होगी। तो एक जो मिर्ज़े जैसा होगा कोई मदरसे का दुश्मन, उसने जाकर चौधरी साहब को बताया कि चौधरी साहब, आपकी गंदम आप तो मदरसे में देते हैं, तो आपको पता नहीं है वो गंदम तो मदरसे के उस्तादों के घरों में भी जाती है और मदरसे के मुहतमिम के घर में भी जाती है। उसी गंदम का आटा असातिज़ा के घरों में जाता है, असातिज़ा के बच्चे खाते हैं, फैमिली खाती है, और वो गंदम तो वहाँ तक जाती है। आप कमाल कर रहे हैं कि आप तो गंदम देते हैं मदरसे में और मदरसे में वो सारे खाते हैं। अब देखिए, ये लोग होते हैं जो जसूस किस्म के होते हैं, मदरसों के गद्दार होते हैं। असल में मदरसों के नहीं, दीन के गद्दार होते हैं, इल्म के दुश्मन होते हैं, मासूम बच्चों के दुश्मन होते हैं जो मदरसों में ज़ेर तालीम होते हैं। अब उसको ऐसी ख़्वाहिश हुई चौधरी साहब को, उसने बड़ा बदज़न करने की कोशिश की। ऐसा बदज़न करने की वो नाकाम कोशिश कर रहा था जैसे इंजीनियर मिर्ज़ा वीडियो बनाकर चंदे से लोगों को बदज़न कर रहा है, मदरसों से बदज़न कर रहा है, असातिज़ा से बदज़न कर रहा है। जो गाड़ियाँ ले लिया, फना ले ली है, तो तू उनका पेट्रोल देता है? शर्म नहीं आती बात करते हुए? अल्लाह देता है, जो कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाए। तुम क्या समझते हो कि सारी ज़िंदगी मौलवी जो हैं और उलमा जो हैं साथ वो मांगते मेरे हाथ फैलाकर? जिसके दीन की वो खिदमत कर रहे हैं वो रब्बुल आलमीन उनको इज़्ज़त देता है और दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो इस जासूस ने
इस बदबख्त ने चौधरी साहब को बदजन करने की बड़ी कोशिश की कि जनाब ये है वो है। तो जब उसकी बात ख़त्म हुई ना, चौधरी साहब माशाल्लाह उठे और उसको गले लगाया, जप्फी डाल के मिले उसको और उसका शुक्रिया अदा किया। अच्छा, अब वो समझ रहा था कि चौधरी साहब के जो है ना मेरी बात चौधरी साहब की अकल में आ गई है। अब इंशाल्लाह मदरसे की गंदम भी बंद होगी, मदरसे का खाना बंद हो जाएगा। जब गंदम नहीं जाएगी रोटी कहाँ से पकेगी, जब गंदम नहीं जाएगी बच्चे खाना कहाँ से खाएंगे, जब गंदम नहीं जाएगी तो असातिज़ा के घरों में नहीं जाएगी, मोहतमिम के घर में नहीं जाएगी। अब तो मदरसा बर्बाद हो गया, अब तो तबाह हो जाएगा। और ना मालूम उसने शेख चिल्ली के क्या क्या कमालात सोचे थे। तो चौधरी साहब जब बड़ी खुशी से खुश दिली से उसको मिले ना, तो उसके बाद चौधरी साहब ने कहा आप 2 मिनट तशरीफ़ रखें, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसने कहा जी मेरी तो बड़ी बल्ले बल्ले हो गई है। उसके बाद उसको बिठा के चौधरी साहब ने कहा ये मिर्ज़ा मंगोल और उसके चाहने वाले गौर से सुने मेरी बात। कहने लगे चौधरी साहब कि भाई आपका बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये बता दिया कि वो गंदम जो मैं मदरसे में देता हूँ उसी गंदम से असातिज़ा के घर में भी गंदम जाती है। तो वल्लाहि लाज़ीम मुझे तो ये पता ही नहीं था। आज के बाद मदरसे में बच्चों के लिए गंदम अलग जाएगी और उस्तादों के लिए गंदम अलग जाएगी। चौधरी साहब माशाल्लाह दीन को समझने वाले थे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं हज़ारों लाखों में चौधरी साहबान हैं जो अल्लाह के दीन के लिए उन्होंने अपने माल और दौलत को वक़्फ़ किया हुआ है। अल्लाह उनको बगैर हिसाब के देता है, वो भी अब बगैर हिसाब के देते हैं। तो जब चौधरी साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया ना और कहा कि मदरसे के लिए अलग जाएगी गंदम, असातिज़ा के लिए अलग जाएगी, उसके तो जो अंदर की जो गैरत थी ना वो तो मिलिया मेट ही हो। उसके जितने प्लान थे और जितनी उसकी बातें थी, जितना उसने चौधरी साहब को बदजन करने की कोशिश की थी। जैसे मिर्ज़े ने जो है ना अपने क्लिप में पूरी कोशिश की है कि अवाम मदरसों से बदजन हो जाए, अवाम मदरसों से दूर हो जाए, चंदा ना दें, गंदम ना दें, आटा ना दें, कोई चीज़ ना दें, लिहाजा मदरसे गरीब होकर खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। ये तुम्हारी सोच है, तुम मदरसों को बंद करने वाले, बर्बाद करने वाले हो। वो परवरदिगार नीली छत वाला मदरसों को चलाने वाला है। इंशाअल्लाह इन मदरसों में जो रात को उठकर इन मदरसों के लिए तहज्जुद में दुआएं होती हैं, जो बुजुर्ग दुआएं करते हैं, जो असातिज़ा दिन को मेहनत करते हैं, रात को रब के सामने रोते हैं, जो मुहतमिम दिन को मेहनत करते हैं, रात को परवरदिगार के सामने हाथ उठाकर कहते हैं कि परवरदिगार ये तेरे दीन का काम है, किसी का मोहताज ना करना, किसी के सामने हाथ ना फैलाने देना। इस काम में तू अपने फजल से अपने बंदों के दिल में डाल दे जो इस मदरसे के साथ ताउन करें और मदरसे को चलाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन दुआओं का नतीजा है आज हर मदरसे में तलबा की तादाद जो है काबिल सताइश है। हर मदरसे में खाना पकता है, हर मदरसे में जो है उनकी दवाई का इंतज़ाम, उनके कपड़ों का इंतज़ाम, उनके जूतों का इंतज़ाम, ईद पर बेहतरीन मुसाफिर तलबा को उनकी खातिर ख्वाह तवाज़ो की जाती है। ये वो मदरसे हैं जहाँ अल्लाह के नबी के मेहमान इल्म सीखने के लिए, दीन सीखने के लिए आते हैं। कुछ गरीब घरानों के होते हैं, बल्कि ज़्यादातर गरीब घरानों के होते हैं। तो मिर्ज़ा कहता है जी वो गरीब इलाकों से वो आ जाते हैं, पढ़ते हैं और ये होता है वो होता है। ये क्या कहा जाए ऐसे लोगों का कि हर दौर में रुकावटें डालने वाले आते रहे हैं और उनकी रुकावटों को पाश करके अल्लाह के दीन का काम